शिवराज जोगी जला भरपूर ताड़ियों। जल्दी कर दो, वापस कर, नतिया जमीन खसे उठो तो सही। न साईं न, खुदा के वास्ते साईं जोर न कजो मुसा। साईं, खुदा के वास्ते ये मुसा जोर न कजो। होता साईं, जे करे तमाम मुसा जमीन खसे जो, तब वो भला मां कर किथा लाई। इबला, जे करे तहां जमीन मुसा खसे जो, सही सजा मुझा कर्ज में रही थी ना, ऐ मानी न्याय की शादी किथा कराई थी। बाबा हमारे शादी में बाबा। पुत्र, अमान रहो। शायद तुझी किस्मत में यही लिखा हो मेरी अम्मा। अच्छा गया। कर्ज मुझी जेल किबी करे जनी आए थी। तव्हां मुखा केड़ो ता फैसलो पुछो। फैसलो तो पाण करे जरियो आहे। तो मुखा फैसलो जो ता पुछो तो गाल मारो असी मसलो मानू। साईं जी गाल मन हिकड़ी छोरी के पे दर्जा पढ़ाया भई अलाए छा तो समझी पाण के समझे ये तो रिश्तो या ऊपर से खल लाए। हां बुधाए जल्दी बुधाए। समझी समझी बस चले मुझे देर की तकती रही तौल किया तो बुखाता था मुझे। बात है ना। हाँ अच्छा तो वो घबरा ना ये बात पैसा शादी जो तैयारी कर आओ पांचे रिश्ते के वोट बनाए घर वठी ठीक है ये बात पैसा अच्छा बता रहे
नाज़रीन अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम में औरतुनि ते थींदड़ तशद्दुद जे हवाले सां डिस्कस कंदासीं त आख़िरकार उहो कहिड़ो सबबु आहे जो हुकूमती ऐं गैर हुकूमती जागरता मुहिमूं हलाइण जे बावजूदु औरतुनि जी तशद्दुद ते रोकथाम नथो करे सघिजे। इन हवाले सां अॼु असांजे प्रोग्राम में जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि में इफ्तिकार ख़ालिद, कंट्री डायरेक्टर ऑक्सफैम, उन सां गॾु वेठल आहिनि जूलियन पार रीजनल मैनेजर ऑक्सफैम, उन सां गॾु वेठल आहिनि फेरोज़ा ज़ोहरा NGO अॻवान ऐं अयाज़ तुंजो साहब नाले वारो कानूनदान। तमाम सभी के प्रोग्राम समाज में भली कार चाहूँ था। बातचीत की शुरुआत हम आपसे करेंगे। इफ्तिकार साहब, जो पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़या जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में कोई रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि हम ये कह सकें कि तशद्दुद के वाक़या बढ़ रहे हैं और कितने फीसद बढ़ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की कोई भी एजेंसी इस पे स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी नहीं करती और पूरे पाकिस्तान लेवल पे। लेकिन जो इम्प्रेशन है जो कि न्यूज़पेपर से मिलता है और हम ग्रास रूट्स लेवल पे भी काम करते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। Julian Parr, how do you think about the situation of violence in South Asia? I think violence is increasing. We see that not just in Pakistan, but also in India, certainly, in Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, all the countries that I work across. And I think that there are different drivers that are making this. I think that in terms of the economic downturn, globalization, there is more pressure on society, there is more exposure of images and violence in the press. And we also see an increase in honour killings, in forced marriages, and also in female infanticide, which is becoming a major issue in South Asia. South Asia is one of the few countries in the world, along with China, where you have a disparity against men against women, and that is unacceptable. How we can solve these problems? The problem can only be solved collectively. I think it's about raising consciousness in society, but also targeting men. It's only when men change within themselves and realise that this is unacceptable behaviour that real change will happen. And I think the media, which is why I would do an interview like this, is one of those powerful tools for change. And I've used various messaging, and not just in news programmes like this, but also in film, in Bollywood, on television, in Sas Babu dramas, etc. Social messaging around violence against women and strong female role models, yourself included being on television, is a much more powerful message that women have got a right in this world and access to economic well-being and also basic human rights. Do you think it is a less awareness among the people? I think that it is around what is socially acceptable. And I would say it's not just South Asia. Our campaign is now going to be rolled out in West Africa and in Latin America, where our statistics show that in strong patriarchal societies that often women can be abused. So it's not a problem that's confined simply to South Asia. And even in my country, in England, there is still violence against women. Women are protected and the law is there. However, there is no point in raising awareness of people's rights if you don't actually build capacity in the institutions to be able to deal with that. So if women are willing to go to police stations, but then, and I have to say I've seen this in India certainly, they get more abuse from the police in the police station than they did from the original offence itself. So it's about building capacity within institutions, and I'm sure my colleague in the judiciary will talk about this as well. So it has to be a joint effort. It's about changing personally as an individual. It's about changing society, not allowing or tolerate where you see violence, intervening and saying this is unacceptable. But it's also about building state, both at national and at federal level and at state level here, to allow a system for complaints to go up the line and to prosecute. मैडम, आप बताएं कि जो तशद्दुद होता है औरतों पे ज्यादा क्यों होता है? इस सोसाइटी में रहते हुए मर्द के पास ज्यादा इख्तियारात हैं, मर्द का फील जो है वो तस्वर किया जाता है, तो ज्यादा औरतें जो है वो डिपेंडेंट है मर्दों के ऊपर। अगर हम बहुत सारी रस्म और रिवाज को भी देखें, बहुत सारे कानून को भी देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल रवैयों को भी देखें, तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर बनाए हुए वो सारे असूल और ज़वाबित रस्म और रिवाज मर्दों के बने हुए, और उसी की बुनियाद पे औरत को ज़्यादातर घर की चार दीवारी के अंदर रखते हुए
पाबंद किया जाता है कि वो उन सारे असूलों के ऊपर अमल दरामद, इवन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है किसी इलाके में, कोई कत्ल हो जाता है, कोई वाक़या होता है, तो वो उसके बदले में भी औरत को जो है वो सुलह के तौर पर पेश करते हैं। जैसे एक 2 मियांवाली में वाक़यात हुए थे कि एक बंदे ने कत्ल किया और उसके बदले में उनको 13 जो है वो घर की ख़वातीन देनी पड़ी। तो ये ऐसी सूरत हाल है जो हमारे माशरे के अंदर, चूँकि ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है वो कबायली रस्म व रिवाज है, यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम है, एक तरह का बरादरी सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है कि जितने भी फैसले होते हैं वो घर के अमूमन फैसला साजी का जो इख्तियार है वो मर्द के पास से आता है। इहो आहे न माना असांजो वीकेंड चेन मेकर्स कचहरी, उन चेन मेकर कचहरी जेका असांजे ॻोठाणनि सां औरतुनि जे तशद्दुद ख़िलाफ़ माना उन्हनि सां वेही कचहरी जे अंदाज़ में मोबिलाइजेशन अवेयरनेस इहो प्रोग्राम्स असां ॾियूं था त कीअं इहे हिकिड़ा टूल आहिनि, तरीक़ा आहिनि जेके तशद्दुद ख़िलाफ़ जेको असां माहौल ठाहियूं था। त जंहिंमें चेन मेकर कचहरी, चेन मेकर रैलियूं, चेन मेकर मोबाइल वैन्स, चेन मेकर सेमिनार्स, चेन मेकर्स असेंबलीज़, तालुका असेंबली, ज़िला असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, ही सॼी हिकिड़ी कैंपेन आहे जेका साउथ एशिया सतह ते असां हिनखे हलाए रहिया आहियूं। पास अभी आई हैं वीकेंड की कनाडा से कुछ मेहमान आपकी इस कचहरी में शामिल होने के लिए, तो उन लोगों ने बोला देखें विलेजेस में सईदाबाद में कैसे कचहरी हो रही है, तो उस हवाले से ये देखने आए हैं आपके इस कचहरी को। तो आप मैं तारुफ थोड़ा सा मैं हाजरा को बोलूँगा, ये हमारे हाजरा हैं, वही पेकेन पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी है उसको देखती हैं। आपसे मुलाकात वक्तन फ़वक्तन इसकी होती रहती है। बाकी दोस्तों का तारुफ करा दे ताकि बाद में मैं शौकत को बोलूँगा, क्योंकि शौकत यहाँ के वीकेंड के अलाई हैं और डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के फोकल पर्सन भी हैं, तो लिहाजा बाद में तारुफ कराएंगे। पहले मैं हाजरा को बोलूँगा, जो 2 मेहमान बाहर से आए वो आपसे तारुफ करा दें। ये जो हमारी कैंपेन है ये अब साउथ एशिया से निकलकर ये दुनिया भर में इस कैंपेन को जो है तारुफ कराया जा रहा है इसको, और इस हवाले से कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में जो है वीकेंड कैंपेन अब जा चुकी है। वहाँ मिरियम पालासियोस हमारे पास आई हैं, ऑक्सफैम कनाडा से आई हैं, तो और वो वहाँ पे वीकेंड कैंपेन यहाँ साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनके तजुर्बों को देखकर यहाँ के चेंज मेकर से मिलकर ये इसी कैंपेन को अब वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। I think that what this community is doing is very important, very innovative and very unique in terms of developing different ways to involve both women and men and children and everybody. Okay. I am impressed to see the way in which people are involved and participating and the incredible level of commitment that they are taking personally to start looking about themselves and the different aspects and the attitudes and behaviors that they have confronted in their life. But most importantly, I am really impressed to see how they are going, talking to other people in their communities, in their workplaces, in their institutions, even in their own families. And the thing that impressed me the most is to hear directly what they are doing in order to change, by either talking with their sisters, their families, and ensuring that the children and their families are involved in this very positive campaign of We Can End All Violence against Women.